فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ ریونیو، ہاؤسنگ، اطلاعات و شہری تعلقات کے وزیر پونگولیٹی سنواس ریڈی نے کہا ہے کہ ان کی حکومت غریب لوگوں کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں کانگریس کی حکومت کو برسر اقتدار آئے 7 ماہ ہو چکے ہیں اور انتخابات میں کیے گئے وعدوں کو بلا وجہ نافذ کیا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت صحافیوں کی فلاح و بہبود کو اہمیت دے گی۔ سری لنکا کے میڈیا پروفیشنلز کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے سیکریٹریٹ میں ریونیو، ہاؤسنگ، اطلاعات اور شہری تعلقات کے وزیر پونگولیٹی سنواس ریڈی سے ملاقات کی۔ یہ وفد ڈاکٹر MCRHRD انسٹی ٹیوٹ کے زیر اہتمام میڈیا مینجمنٹ پر 2 ہفتے کے تربیتی پروگرام میں شرکت کے لیے تلنگانہ میں آیا ہوا ہے۔ وفد کے دورے کی سرپرستی وزارت خارجہ حکومت ہند نے کی ہے۔ سابق MP بوئینہ پلی ونود کمار نے تشویش ظاہر کی ہے کہ تلنگانہ قانون ساز کونسل کا وجود خطرے میں ہے۔ قانون ساز کونسل مکمل طور پر تحلیل ہونے کا خطرہ ہے۔ آئین کے آرٹیکل 171 کے تحت قانون ساز کونسل میں کم از کم 40 نشستیں ہونی چاہیے اور اس سے کم نہیں۔ قانون ساز اسمبلی کی 1/3 نشستوں پر کونسل کے ارکان ہونے چاہیے۔ تلنگانہ بھون میں ایک میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بوئینہ پلی ونود کمار نے کہا کہ مرکزی حکومت کی طرف سے گزشتہ میعاد میں کی گئی آئینی ترمیم کی وجہ سے قانون ساز کونسل کا وجود ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اینگلو انڈین MLA کو ہٹا دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی تلنگانہ اسمبلی میں قانون سازوں کی تعداد کم ہو کر 119 ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اینگلو انڈین کی مدت اسمبلی کی آخری مدت کے اختتام تک تھی، اس لیے آخری اسمبلی کی مدت کے اختتام تک کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ مرکز کی طرف سے کی گئی آئینی ترمیم نئی اسمبلی سے عمل میں آئی۔ اب اسمبلی میں کوئی اینگلو انڈین ممبر نہیں، اس لیے MLAs کی تعداد صرف 119 ہے۔ آئینی دفعات کے مطابق یہ تعداد کونسل کی 3 ارکان کی تعداد 39 ہو گئی۔ شہر حیدرآباد میں BRS ورکرز کی جانب سے پروٹیسٹ جاری ہے۔ اسی کے حصے کے طور پر بھارت راشٹریہ سمیتی BRS پارٹی کے ورکرز نے تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن دفتر کے سامنے احتجاج کیا، جس پر پولیس نے BRS ورکرز کو پروٹیسٹ کرنے پر حراست میں لے لیا اور کئی کارکنوں کو منتشر کرنے کی کوشش بھی کی اور انہیں مختلف پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ اس دوران کشیدگی دیکھی گئی کیونکہ BRS ورکرز کی جانب سے تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن دفتر کے سامنے احتجاج کیا جا رہا تھا۔ నేనే మొత్తుకోవట్లేదు, ఆగుందని చెప్పి దండం పెడుతున్నా। ఇంతకంటే అటువంటి DCP ٹاسک فورس اور HNEW کی جانب سے ایک پریس کانفرنس منعقد کیا گیا تھا۔ یہ پریس کانفرنس ہال CCS بشیر باغ حیدرآباد پر منعقد کیا گیا تھا۔ اس دوران HNEW پولیس اور اس کے علاوہ دیگر پولیس جیسے کہ آصف نگر، حبیب نگر اور کنچن باغ پولیس اسٹیشنز کے عملے نے اس میں شرکت کی اور اس دوران ایک پریس میٹ منعقد کرتے ہوئے بتایا کہ اس
पुलिस की तलाशी के दौरान 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है जो कि गांजा सप्लायर्स हैं और ट्रांसपोर्टर्स हैं और पेडलर्स हैं और उनके कब्जे से 155 किलोग्राम गांजा भी जब्त किया गया है। बादजा प्रेस मीट में पुलिस ने इस ज़िम्मन में मज़ीद तफसीलात बताई। पहले आसिफ नगर के केस में देवराज नाम के एक आदमी था, उससे 10 केजी हमने सीज किया था। उसके बाद लखन सिंह नाम के एक आदमी था, वो हबीबनगर पीएस में इंफॉर्मेशन मिलने के बाद उनको पकड़े थे, उनसे 30 केजी हमने सीज किया था। और बाद में अभी ये कंचनबाग पीएस के लोग हम लोगों ने इनको अप्रहेंड किया था, तो इन लोगों से 110 केजी हमने सीज किया। तो इन लोगों को पकड़ने के बाद हमें पता चला कि ये लोग भी उसी को देने जा रहे थे। तो ये लिंक ऐसा जा रहा है कि ये लोग लखन सिंह को देते, लखन सिंह दूसरों को देवराज जैसे लोगों को दे रहा है बोल के। तो ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हम पूरा देखेंगे कि लखन सिंह है और भी कोई लोग है या और लखन सिंह के लोग देवराज जैसे कितने लोग हैं वो भी देख रहे। और इनमें ट्रांसपोर्टर्स भी है, मतलब ये डायरेक्टली थोड़ा डिलीवर करते, थोड़े ट्रांसपोर्टर्स बीच में लोग है। एक संगारेड्डी का आदमी है, जहीराबाद का, संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, उसे भी हमने पकड़ा, तो वो भी यहाँ पर डिलीवरी करता है। तो ये तरीके रहते हैं, मेन ओरिजिनल सप्लायर, ट्रांसपोर्टर, पेडलर, सब पेडलर। तो ये चारों वेरियस लेयर्स को हमने इस ऑपरेशन में मतलब लोकल पुलिस के सपोर्ट से आज पकड़ने के बाद ये चला था, ये 4 लोग है। ओके। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी कोत्तागुड़म के एमएलए कोनानेनी साम्बशिवराव ने संगारेड्डी भवन के सामने धरने में शिरकत की। रियासत भर में संगारेड्डी बचाओ के नारे के साथ कलेक्ट्रेट्स के मुहासरे के हिस्से के तौर पर हैदराबाद के लकड़ी का पुल इलाके में संगारेड्डी भवन के सामने धरना प्रोग्राम में बाएं बाजू की जमातों ने सीपीआई के साथ मिलकर कहा कि बीजेपी साजिश कर रही है। उन्होंने कहा है कि ये शर्म की बात है कि केसीआर ने भी इसकी हिमायत की थी कि अगर संगारेड्डी लाइमलाइट में आए तो वो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। भैंसा शहर के फूले नगर इलाके में महकमे पुलिस की जानिब से निर्मल जिले एसपी डॉक्टर जानकी शर्मिला आईपीएस की हिदायत पर भैंसा एएसपी अविनाश कुमार आईपीएस की क़ियादत और टाउन सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस राजा रेड्डी की निगरानी में कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया और घर घर तलाशी लेने के दौरान गाड़ियों के मुकम्मल और मालिकाना दस्तावेजात की जाँच की गई और दस्तावेजात की अदम दस्तियाबी व गैर नंबर प्लेट के 102 मोटरसाइकिल, 2 3 व्हीलर्स, 4 4 व्हीलर और 3 रेत के ट्रैक्टर्स को जब्त कर लिया। इस प्रोग्राम में सब इंस्पेक्टरान ऑफ पुलिस जिनमें मोहम्मद गौस, मोहम्मद शरीफ के अलावा पुलिस जवानों ने हिस्सा लिया। మార్నింగ్ 5 నుండి మన ధ్యాస టౌన్ పోలీస్ టీమ్ అండర్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ సిఐ ధ్యాస టౌన్ లెడ్ అ కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్. దీంట్లో ఇది పులియానగర్ ఈరోజు ఆపరేషన్ చేశారు. దాంట్లో ఎవరు ఉంటున్నారు బయట నుండి, ఇది రెంటెడ్ పర్సన్ ఎవరు ఉన్నారు. బైక్స్లో ఏదైనా ఇష్యూ అయితే, నెంబర్ ప్లేట్లో ఏదైనా చిన్న ఇష్యూ అయితే, నెంబర్ ప్లేట్ లేదు లేకపోతే నెంబర్ ప్లేట్ డిలీట్ చేశారు, నెంబర్ ప్లేట్లో ఏదైనా వేరే పేరు రాశారు, దానికి సంబంధించిన కొంచెం అవేర్నెస్ పెట్టారు. దాని కలిసి ది రెంటెడ్ పర్సన్స్లో ఎక్కడ నుండి వచ్చారు, కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ ఉందా లేదు అది కూడా చూశారు. సో ఇది కలిసి మన ఇక్కడ కమ్యూనిటీలో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే, ఏదైనా వాళ్ళకు ఏదైనా ఇష్యూ అయితే వాళ్ళు కూడా ఆపర్చునిటీ మన టీంకి వచ్చారు. रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर डॉक्टर चिन्नारेड्डी ने महात्मा ज्योतिबा फूले प्रजा भवन में मुनक़दा अवामी खिताब के प्रोग्राम में शिरकत की और दरख्वास्तें वसूल की। मुख्तलिफ मसाइल के साथ आए लोगों ने चिन्नारेड्डी और प्रजा भवन के अहदेदारों को अर्जियाँ पेश की। जुमे को मुनक़दा प्रजावानी प्रोग्राम में कुल 594 दरख्वास्तें मौसूल हुई। अहदेदारों ने बताया कि रेवेन्यू से मुतल्लिक़ मसाइल से मुतल्लिक़ 141 दरख्वास्तें, महकमे शहरी फराहमी से मुतल्लिक़ 86, महकमे बिजली से मुतल्लिक़ 58, हाउसिंग
हाउसिंग से मुतल्लिक 56, पंचायती राज देही तरक्की के महकमे से मुतल्लिक 54 और दीगर महकमों से मुतल्लिक 199 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। प्रजवानी स्पेशल ऑफिसर देविया दीगर अफसरान ने अवाम से दरख्वास्तें वसूल की और उनके मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। हैदराबाद में एक खातून ने आरटीसी की सिटी बस में एक बच्चे को जन्म दिया। ये वाकया बहादुरपुरा में पेश आया, जहां श्वेता रत्नम नामी एक हामिला मुशीराबाद डिपो की जूम पार्क की रूट की बस में सवार हुई। बहादुरपुरा पहुंचते ही उसके पेट में दर्द बढ़ गया। कंडक्टर आर सरोजा, जिसने ये देखा, फौरी चौकस हो गई और खातून मुसाफिरों की मदद से हामिला मुसाफिर की बस के अंदर ही डिलीवरी करवाई, जिसने एक लड़की को जन्म दिया। बादजा उसे बेहतर इलाज के लिए करीबी सरकारी मैटरनिटी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। फिलहाल माँ और बच्चा बिल्कुल ठीक है। आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजना ने ख्वातीन मुसाफिरों बशमूल कंडक्टर सरोजा को मुबारकबाद दी, जिन्होंने बस में डिलीवरी के इंतजाम किए और इंसानियत का मुजाहरा किया। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने भी इस वाक़े पर मसरत का इजहार किया और कहा कि बर वक्त रद्दमल की वजह से माँ और बच्चा महफूज है। उन्होंने कहा कि यह काबिल सताइश है कि आरटीसी अमला मुसाफिरों को बाहिफाजत उनकी मंजिलों तक पहुँचाते हुए खिदमत के जज्बे का मुजाहरा कर रहा। तेलंगाना की साबिका के चंद्रशेखर राव हुकूमत में हुई फोन टैपिंग का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। फोन टैपिंग यानी कुछ खास लोगों के फोन पर निगरानी रखने के मामले में हैदराबाद पुलिस ने तेलंगाना हाई कोर्ट में अपना जवाबी हलफनामा काउंटर एफिडेविट दाखिल कर दिया है। इसमें पुलिस ने वाज़ेह लफ्जों में कहा कि फोन टैपिंग मामले में मुलज़िमीन ने गुज़िश्ता BRS हुकूमत के दौरान हाई कोर्ट जज और उनके अहल खाना समेत कुछ सियासी लीडरों के मोबाइल फोन की निगरानी की थी। पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा कि मुलजिम पुलिस अफसरान ने ए रेवंत रेड्डी, तेलंगाना PCC सदर और अब के वज़ीर आला और दीगर के फोन नंबर के CDR कॉल डिटेल रिकॉर्ड और IPDR इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड हासिल किए थे। हलफनामे के मुताबिक मुलज़िमीन ने रेवंत रेड्डी के अहल खाना, रिश्तेदारों और करीबी लोगों के साथ साथ पार्टी के साथियों से मुताल्लिक़ प्रोफाइल भी तैयार की थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खसूसी खुफिया ब्यूरो के एक मुअत्तल DSP, 2 एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट्स और एक साबिक़ पुलिस डिप्टी कमिश्नर DCP समेत 6 मुलज़िमीन के खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल किया है। उन्हें हैदराबाद पुलिस ने 13 मार्च से मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से खुफिया जानकारी मिटाने के साथ मुबैना फोन टैपिंग के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। हाई कोर्ट में पेश हलफनामे में पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलज़िमीन ने जांच के दौरान ताउन नहीं किया। इस जांच का दायरा बहुत वसी है और आने वाले दिनों में कुछ बड़े इंकशाफात होने के इम्कानात हैं। महकमे महसूलात, हाउसिंग, इत्तलात और शहरी ताल्लुकात और वरंगल जिले के इंचार्ज वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत तारीखी शहर वरंगल की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रही। हाल ही में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वरंगल जिले के अपने दौरे के दौरान वहां के अवाम की उमंगों के मुताबिक बहुत सी यकीन दहानियां करवाई और इस तनाज़ में उन्होंने ओहदेदारों को हुक्म दिया कि वो वरंगल शहर के तरक्याती कामों को मद्देनजर रखते हुए जंगी बुनियादों पर शुरू करें। हुकूमत की तरजीहात वरंगल जिले के वुजरा कोंडा सुरेखा, दाना सरीज, अनुसुया सीतक्का और चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल एडवाइजर वेम नरेंद्र रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में वाक़ अपने दफ्तर में वरंगल शहर की तरक्की का 6 घंटे तक जायजा लिया। इस मीटिंग में बुनियादी तौर पर मुश्तरका वरंगल जिले की तरक्की, IRR अराजी हुसूल, ORR अलॉटमेंट, वरंगल मास्टर प्लान, ज़ेर ज़मीन निकासी का निज़ाम और माकड़ा मास्टर प्लान, कालोगी काल क्षेत्र GWMC के अंदर रिटेनिंग वॉल्स की तामीर व दीगर कामों का जायजा लिया और इस पर कई तबादला ख्याल किया। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर और कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के हाथरस पहुंचे, जहां उन्होंने मुतासरीन के अहल खाना से मुलाकात की और उनसे इजहार हमदर्दी किया और रियासती हुकूमत से खुले दिल से मुतासरीन को एक्स ग्रेशिया देने की मांग की। राहुल गांधी ने मुतासरीन के अहल खाना से मुलाकात की और भगदड़ की वजूहात और ख़ानदानों की हालत के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वालों को खराज अक़ीदत पेश करते हुए मुतासरीन के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया।
राहुल गांधी ने कहा कि हाथरस हादसे के मुतासरीन के लखाना से मुलाकात की है। उन्होंने उन्हें तसल्ली दी और इजहार हमदर्दी किया। कांग्रेस दुख की इस घड़ी में हाथरस के मुतासरा खानदानों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा है कि मुतासरा खानदानों को मुनासिब मुआवजा मिलना चाहिए। ये लोग गरीब हैं, हम उनके मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को खुले दिल से इन लोगों की मुकम्मल माली मदद करनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है कि ये सियासत करने का वक्त नहीं, लेकिन ये यकीनी है कि इंतजामिया ने जिम्मेदारी से काम नहीं किया और इसलिए गरीबों पर यह कहर बरपा हुआ। उन्होंने कहा है कि गरीब मुतासरा खानदानों को जल्द अज जल्द माली इमदाद मिलनी चाहिए और अगर इसमें ताख़िर हुई तो इसका फ़ायदा किसी को नहीं होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने मुबैना एक्साइज पॉलिसी घपले मामले में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की जमानत की दरख्वास्त पर मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो CBI को नोटिस जारी किया। जस्टिस नैना बंसल की कृष्णा की सिंगल बेंच ने दोनों फरीकों के दलाइल सुनने के बाद CBI को नोटिस जारी करते हुए 1 हफ्ते के अंदर अपना मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत दी। सिंगल बेंच ने इस मामले में अगली समाअत के लिए 17 जुलाई की तारीख मुकर्रर की। इसी दिन केजरीवाल की गिरफ्तारी और उन्हें CBI की हिरासत में सौंपने की ख़ुसूसी अदालत को चैलेंज करने वाली उनकी दरख्वास्त पर भी समाअत होनी है। इस मामले में मुलजिम की दरख्वास्त पर बेंच ने 2 जुलाई को मरकजी तफ्तीशी एजेंसी को नोटिस जारी करके मामले को 27 जुलाई के लिए दर्ज रजिस्टर करने की हिदायत की थी। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की दरख्वास्त जमानत पर समाअत करते हुए सिंगल बेंच ने यह भी कहा है कि दरख्वास्त गुजार ने CBI के इस मामले में पहले निचली अदालत से रुजू करने के बजाय हाई कोर्ट से रुजू क्यों किया और इस सवाल पर बाद में गौर किया जाएगा। AIYF राष्ट्र समिति के ज़रिए एहतमाम रियासत भर में ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन और लेफ्ट यूथ एंड स्टूडेंट यूनियन के लीडरों की गैर कानूनी गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हुए रियासती हुकूमत की तरफ से बेरोजगारों के मसाइल को नज़रअंदाज करने के खिलाफ एहतजाज करते हुए कोयला मनसूख करने का मुतालबा किया है। कानकनी की नीलामी और हिमायत नगर के वाई जंक्शन चौराहे पर ये एहतजाज किया गया। उन्होंने इंटेलिजेंस और पुलिस की लापरवाही के खिलाफ प्ले कार्ड्स के साथ धरना दिया। इस मौके पर AIYF के रियासती सदर और जनरल सेक्रेटरी वलीउल्लाह कादरी और कलवेद धर्मेंद्र ने मुश्तरका तौर पर कहा कि रियासत में इंटेलिजेंस निज़ाम कमज़ोर है और दीगर प्रोग्रामों को उनकी अंजुमन से मंसूब करके क़ब्ल अज़ वक्त गिरफ्तारियां करना गैर जमहूरी। उन्होंने कहा कि इस किस्म की गैर कानूनी गिरफ्तारियां पिछली BRS हुकूमत में भी हुई थी। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।